Hello everyone, myself Dr. Jyoti D. Gulwani with your subject Financial Accounting 1. Now today we are going to learn about our method number 2, which is known as LIFO method. LIFO, that is last in first out, means whatever stock will come in last, you have to send it first or sell it first. In FIFO method, what we have seen, the stock which is coming first is sold first. But here, the stock which is coming in last is to be sold first. That is why this method is known as the LIFO method. Question will be same as they were providing us into the FIFO method. You can read the question over here. From the following information of L&T Limited, prepare stock register using LIFO method and calculate closing stock value for the month of March 2018. Two informations are given, receipt and issue. Just giving a reminder, in issue they are not going to give us the rate. Here all the purchase and receipts are given, as well as if any return is there, then it is mentioned into the receipt column with the different rate. In the same way here different issues are given. Issues with one shortage. Shortage, that means if your stock is lost by anything. So here to the left side you can see the receipt, and to the credit side you can see the issue of a particular stock. Now how we have to prepare it? So see, the format is going to remain same, that is firstly receipt, then issue, then balance. In receipt, firstly date column 1 will be there, and invoice number, as I said that in receipt as well as in the issue. Directly here you can write down invoice number, or here in receipt side you can mention your inward invoice number, and in issue you can write down outward invoice number. Three columns are same, that is quantity, rate, amount. Quantity, rate, amount. Here also you can see in the balance also quantity, rate and amount is there. Now what is going to be the first entry? So see, year is 2008 and March 1st, then here March 6th is there. So before moving to the March 6th, you have to check your date to the credit side also, that if any date is given to the issue side or not. Okay, so alternatively both the side we have to check the date. दोनों साइड चेक करते जाना है, और जो ट्रांजेक्शन पहले आएगा उसको रजिस्टर करते जाना है. So year is 2008, March 1st, we have purchased quantity 1700 at the rate of 2.5. So here in our stock register, in receipt, March over here, year 2008, March 1st. Quantity we have purchased 1700 at the rate of 2.5. If you multiply 1700 into 2.5, the amount is going to be 4250 rupees. Now, on the same day, there is a no issue. You can put underline also here, as I explained in the class also. Here receipt is there but issue is not there. Now at the end of completing your business, or at the end of completing your selling, you have to check that what is the remaining stock. So see, as only purchase were there, sales was not there. So stock जो पड़ा था वो as it is था. You can see over here 1700 is the stock at the rate of 2.5 with the amount of 4250. Now our first March is over. Here March 3rd is given. Okay, तो आफ्टर फर्स्ट मार्च 3rd आता है, तो March 3rd लेंगे, then 6th, 7th and 10th will go, and then 12, then 16, then 21, 28 and 31. In this way we will go. तो March 3rd over here issue 1000 units. That means हमें sales करना है 1000 units. Now whenever you do any kind of sales, you have to check the last transaction stock. कभी भी हम सेल्स करेंगे तो लास्ट ट्रांजेक्शन का स्टॉक देखेंगे. तो सी हियर यू कैन लास्ट ट्रांजेक्शन में देख सकते हो 1700 स्टॉक वॉज देयर, तो वी हैव टू सेल ओवर हियर 1000 units. So out of this 1700 we have to sell 1000 unit. What is the rate? You can see over here rate is 2.5. तो 1700 में से 1000 सेल किया at the rate of 2.5. If you multiply this 2 तो आंसर मिलेगा 2500. Now we have done the sales over here and we have to check that what is the remaining stock.
तो आउट ऑफ दिस 1700 1000 इज सोल्ड, तो ऑब्वियसली 1700 माइनस 1000 करेंगे तो व्हाट इज रिमेनिंग स्टॉक विद अस टुडे, दैट इज ऑन March 3rd remaining stock is 700 at the rate of 2.5 because other rates are not given, so only 2.5. so this is what ending of March 3rd. Then after March 3rd, as I said that we'll go with the 6th, 7th and 10th. Now return from job 100, return that means whatever goods you have sold on the last date उसमें से 100 return आया है. तो here you can see that we have sold goods over here 1000, इसमें से return आया है. तो 100 कौन से रेट का रिटर्न आया होगा 2.5, तो 100 2.5 250. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी स्टॉक ओवर हियर, यहाँ पे हमारा स्टॉक कौन सा होगा, तो स्टॉक के लिए मैंने आपको बोला ऑलवेज टेक द ओल्डर वन फर्स्ट. तो व्हाट इज ओल्ड स्टॉक 700 एट द रेट ऑफ 2.5, तो ओल्डर स्टॉक इज 700, 2.5 पहले लिखना है एंड देन एड द न्यू वन विच इज परचेज्ड बाय यू. तो न्यू वन परचेज किया 100 एट द रेट ऑफ 2.5. इसको कंबाइन लिखना है तो भी लिख सकते हो, बट वी आर गोइंग टू कीप द प्रैक्टिस of writing down stock separately as it will come into the business. रिटर्न आया तो रिसीप्ट हुआ, इसके लिए रिसीप्ट में लिखा एंड लास्टली वी हैव सोल्ड द गुड्स, हमने ये लास्ट में ये गुड्स सेल किया था तो इसी में से रिटर्न आया है, दैट्स वाई 100 2.5. एंड जब बिजनेस बंद करेंगे तब चेक करेंगे कितना स्टॉक बचा है, तो पुराना वाला पहले फिर नया वाला, तो ओल्डर वन इज 700, न्यू वन इज 100. तो दिस इज एंडिंग ऑफ March 6th. देन 7th परचेज 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3. तो हमें ये परचेज में लिखना है, रिसीप्ट में लिखना है, ठीक है. हियर वी हैव कंप्लीटेड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ 6th. नाउ परचेज्ड ऑन 7th 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, तो टोटल होगा 3600. नाउ एट द टाइम ऑफ शटिंग डाउन आवर बिजनेस, जब बिजनेस बंद करेंगे स्टॉक गिनना है, तो अगेन रिपीटिंग ओल्डर वन फर्स्ट न्यू वन लेटर ऑन. तो ओल्डर वन स्टॉक देखना है, पुराना ये ऊपर देखना है, ये 6th वन जो हमने खत्म किया था उसमें कितना स्टॉक पड़ा है, उसमें से बेचा नहीं, तो 700 था तो 700 एज इट इज, उसके रेट के साथ फिर 100 तो 100 एज इट इज, एंड फिर नया सामान आया 1200 तो वो 1200 ऐड करना है. सारे स्टॉक लिखते जाने हैं, ओल्डर वन फर्स्ट, जो पुराना है वो पहले लिखना है, फिर न्यू वन ऐड करते जाना है एज यू आर गोइंग टू डू द परचेज. सो एंडिंग विथ ट्रांजेक्शन 7. देन अगेन परचेज 10th को 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.80, तो वापस परचेज तो रिसिप्ट में ही लिखेंगे. हियर वी हैव एंडेड विद द March 7th, ठीक है. अब नया 10th को वापस परचेज किया तो 500 एट द रेट ऑफ 3.80, 1900 टोटल स्टॉक इज परचेज. अभी कोई इश्यू नहीं किया तो इश्यू में आएगा डैश एंड एट द एंड ऑफ क्लोजिंग आवर डे, हम दुकान बंद करेंगे तो हम स्टॉक गिनेंगे, स्टॉक गिनने के टाइम पे पुराना सामान पहले लिखेंगे. तो ऊपर वाला ट्रांजेक्शन देखना है, उसमें ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में देख सकते हो ओल्डर वन 3 थे, 700 तो 700 एज इट इज, 100 तो 100 एज इट इज, 1200 तो 1200 एज इट इज, एंड वापस नया सामान लिया 500 का तो वो 500 ऐड करना है. वेन एवर यू परचेज तो स्टॉक नीचे 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 आपको लिखते ही जाने हैं. सेल्स करोगे तो मेथड के हिसाब से हम लोग निकालेंगे. तो दिस इज एंडिंग ऑफ March 10th. देन नेक्स्ट इज March 12th. यू हैव सोल्ड 1500 यूनिट्स. अभी देखो मैंने बोला था सेल्स में कभी रेट नहीं दिया होगा, मेथड के हिसाब से जाएगा. अभी सेल्स करना है March 12th को एंड आवर मेथड इज LIFO मेथड. हमारी जो मेथड है वो LIFO मेथड है. LIFO मेथड दैट मीन्स व्हाट, LIFO, जो लास्ट में आएगा वो सामान पहले बेचना है. व्हाट इज द FIFO मेथड, दैट इज जो सामान पहले आता है वो पहले बेचना है. LIFO मेथड में उल्टा है, जो लास्ट में आएगा वो पहले बेचना है.
तो टोटल वी हैव टू सेल 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स बेचने हैं। तो लास्ट वाला सामान पहले बेचना है, तो हमारे पास स्टॉक कितना था वो आगे वाले ट्रांजैक्शन में देखना है। 4 स्टॉक हमारे पास थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। वी आर हैविंग द 4 स्टॉक। इसमें से टोटल स्टूडेंट्स हमें कितना सेल करना है, वी हैव टू सेल 1500 यूनिट्स। तो जो सामान बाद में आएगा, लास्ट में आया, उसको पहले बेचना है। क्यों? अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड। तो देखो लास्ट में सामान स्टूडेंट कौन सा आया, 500 का, तो ये 500 यूनिट्स पहले बेचेंगे एट द रेट ऑफ 3.8। उसका जो रेट है ना वही डालना है। अभी आउट ऑफ दिस 1500 500 इज सोल्ड, तो अभी कितना आपको बेचना है, 1000। तो 1000 किस में से बेचोगे स्टूडेंट, फ्रॉम दिस 1200। तो 1200 में से 1000 आपको यहाँ पे देने हैं एट द रेट ऑफ 3.8। लास्ट वाला सामान पहले जाएगा, तो पहले ये 500 निकाला और ये 1200 में से निकाला 1000। अभी ये हमने बेच दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे सामान कितना बचा। तो सामान में तो देखो जैसे रूल फॉलो कर रहे हैं ना, वैसे ही सुनते ही जाना। ओल्डर वन फर्स्ट, जो न्यू आया था वो लास्ट में। तो ओल्डर वन स्टूडेंट्स आपका कौन सा स्टॉक था, वापस यहाँ पे अलग लाइंस लगाती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ओल्डर वन वॉज 700, वो एज इट इज रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो लिख दिया। देन 100 एज इट इज रहा, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। एंड आउट ऑफ दिस 1200 वी हैव सोल्ड 1000 यूनिट्स। तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 200। तो 200 लिखा एंड दिस 500 इज ऑलरेडी सोल्ड, तो इसको लिखना नहीं है। अगेन रिपीटिंग दिस लीफो मेथड में क्या करना है, जो लास्ट में सामान आया वो आपको पहले बेचना है। तो देखो लास्ट में आया 500, तो 500 हमने पहले बेच दिया। एंड टोटल वी हैव टू सेल 1500 यूनिट्स। तो ये 1200 में से फिर 1000 निकालना है, तो बचेगा कितना, 200 यूनिट्स। नाउ एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग अवर बिजनेस, जब बिजनेस बंद करेंगे तब स्टॉक लिखना है। तो ये 700 एज इट इज रहा, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 100 एज इट इज रहा, 100 एज इट इज लिखेंगे। एंड आउट ऑफ दिस 1200 1000 इज गिवन, तो कितना बचा है स्टूडेंट्स, 200। तो दिस इज अ रिमेनिंग स्टॉक एट द March 12th। Now after March 12th, as I said that दोनों साइड देखना है। 12 के बाद 16 है, तो on 16 we are doing the purchase of 2000 units। तो यहाँ पे आपका एंडिंग हुआ था, ये हमारा लास्ट स्टॉक बचा था, ठीक है। अभी हम परचेज कर रहे हैं 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.55, 5100 इज अवर स्टॉक। परचेज करेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा नीचे नीचे हम ऐड करते जाएंगे। तो अवर लास्ट स्टॉक वॉज दिस 3, ये हमारा जो लास्ट 3 स्टॉक बचा था। तो 700 एज इट इज, 100 तो 100 सामान पड़ा है, 200 तो 200 पड़ा है। न्यू परचेज 2000, तो वो कर देना है ऐड एट द रेट ऑफ 2.55। बस ये खत्म हो, फिर यहाँ पे लाइन आप पूरे में लगा सकते हो। तो दिस इज व्हाट आवर रिमेनिंग स्टॉक। अब जब बेचेंगे तो ये 4 स्टॉक में से बेचेंगे, और कौन सी मेथड से बेचेंगे, LIFO, मतलब जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ये 4 में से बेचेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, फिर ऊपर हम चलते जाएंगे। आफ्टर दिस देयर इज अ 21 डेट, इश्यू हमें करना है 2500 यूनिट्स। अगेन याद रहे, इश्यू में कभी भी प्राइस नहीं होगा, सिर्फ परचेज में होगा, क्योंकि इश्यू में जो जो सामान बेचेंगे उसका रेट लगाते जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें सेल करना है 2500 यूनिट्स फ्रॉम दिस 4 स्टॉक, है ना, लास्ट ट्रांजेक्शन है ना, ये 4 में से बेचना है। टोटल कितना बेचना है, 2500। एंड लीफो मेथड है, लास्ट का सामान पहले बेचो। तो पहले 2000, तो 2000 उसका जो रेट है, रेट लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2000 बेचा। अब 2000 इसमें से माइनस करो, तो कितना बचा बच्चा लोग, 500 इज रिमेनिंग टू सेल। तो ये 200 अभी पहले बेचो, 200 बेचा, अभी इसमें से 200 माइनस करो, तो और कितना स्टॉक सेल करना है, 300। तो इसमें ये 100 है, ये 100 निकाल दो इसमें से, अभी कितना स्टॉक बचा, 200। तो ये 200 किस में से निकालेंगे, फ्रॉम दिस 700। तो ये लास्ट फिर 200 यहाँ पे हमें सेल करना है। टोटल वी हैव टू सेल 2500, पहले 2000 का स्टॉक निकालेंगे, तो 500 बचेगा, देन 200, देन 100,
ठीक है, इसे लास्ट से चालू करना है। अगेन रिपीटिंग, लीफो मेथड है, टोटल 2500 यूनिट्स हमें बेचने हैं, तो लास्ट का सेल जो स्टॉक है वो पहले बेचेंगे 2000 एज इट इज लिख दिया। अभी 500 बाकी है तो ये 200 और 100 भी ले लेंगे, तो 200 एंड 100 जिसका रेट जो है उसके सामने लिख देना है। एंड आउट ऑफ दिस 700 वी हैव टू सेल लास्ट 200, तो 200 हम यहाँ पे लगा देंगे। नाउ सामान कौन सा लिखना है, ये सारा हमने सेल कर दिया। व्हाट इज द रिमेनिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द डे, तो सी ये 2000 पूरा बिक गया, ये 200 पूरा बिक गया, ये 100 पूरा बिक गया, एंड आउट ऑफ दिस 700 200 इज टेकन। तो सिर्फ कितना सामान बचा, 700 माइनस 200, तो रिमेनिंग स्टॉक इज व्हाट, 500 यूनिट्स। तो 700 में से 200 चले गए, सिर्फ कितने बचे स्टूडेंट्स, 500। ये 700 में से ये 200 दिए, बाकी सब सेंड कर दिया है। तो आवर रिमेनिंग स्टॉक इज 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.5। नाउ आफ्टर 21st इसमें बहुत सारा इश्यू हो गया, तो अगेन देयर इज अ न्यू परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.75। तो नाउ दिस इज आवर रिमेनिंग स्टॉक, ये याद रहे 500 यूनिट्स, एंड वी आर नाउ परचेजिंग न्यू थिंग। तो मार्च 28 को 200 यूनिट्स आर परचेज एट द रेट ऑफ 3.75, टोटल हुआ 750। देयर इज अ नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है, तो एज इट इज। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज अवर बिजनेस, तो स्टॉक गिनना है। एज आई सेड दैट पुराना वाला पहले लिखना है, 500 था ना ऊपर, वो पहले लिखना है, एंड न्यू परचेज ऐड करना है 200। तो दिस इज द रिमेनिंग स्टॉक ऑन द डे March 28। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ 31st शॉर्टेज। सी शॉर्टेज मतलब आपके पास वो सामान नहीं है, सामान नहीं है तो आपको समझना है दैट इज योर इश्यू। शॉर्टकट इसका अगर याद रखना है तो जब भी आपका कोई भी जो स्टॉक है वो रिटर्न आएगा, वेन एवर एनी स्टॉक इज रिटर्निंग टू यू दैन इट इज कंसिडर्ड एज योर परचेज और रिसिप्ट, एंड वेन एवर देर इज अ शॉर्टेज, तो शॉर्टेज आपको समझना है योर इश्यू। तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ 20 यूनिट्स इज देयर, तो 20 लिख दिया। अभी किसकी शॉर्टेज हुई, तो देखो लीफो मेथड है, तो लास्ट का स्टॉक हमें पहले लेना है। शॉर्टेज है, आपको इश्यू समझना है, इश्यू हमने कितना किया ऐसा 20, लेकिन यहाँ पे लिख देना इनटू इनवॉइस नंबर शॉर्टेज ऐसा 20। कौन सा रेट लेंगे, इश्यू ही समझेंगे, एंड दिस मेथड इज योर लीफो मेथड। तो जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो लास्ट का हमारा सामान था 200, तो 200 में से हाउ मच यू हैव टू गिव 20, तो रेट उसका लेना है 3.75, एंड this was our stock. Out of this 220 is given at the rate of 3.75 when we are closing the business। तो अभी हमें चेक करना है 500 was as it is kept as it is, and out of this 220 is given, so what is remaining stock 180 at the rate of 3.75, and then just make the total of this two। तो हमारा ये जो stock बचा ये है 500 and 180 and 1250 and 675। now वेरीफाई करने के लिए आपका आंसर व्हाट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, तो 500 प्लस 180 टोटल इज 680, 1250 प्लस 675 तो टोटल इज 1925। डू द टोटल ऑफ फुल क्वांटिटी ऑफ रिसिप्ट, डू द टोटल ऑफ फुल क्वांटिटी ऑफ इश्यू, देन just deduct this minus this, that is 5700 minus 5020, तो इसका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए 680। ये आ गया तो योर फुल कैलकुलेशन इज राइट। इन द सेम वे do the full total of all the receipt amount, do the full total of receipt full amount, in the same way do the full total of issue full amount, then this minus this amount, क्या करना है ये माइनस ये, अगर अमाउंट माइनस अमाउंट, रिसीप्ट अमाउंट माइनस इश्यू अमाउंट आपका ये 1925 आता है, तो योर आंसर इज राइट। नेवर डू द टोटल ऑफ दिस रेट्स, ये रेट्स का कभी टोटल नहीं करना है।
फाइनल आंसर बैलेंस का जो होगा वो फाइनल जो स्टॉक बचेगा उसका ही टोटल करना है, उसका फुल टोटल नहीं, फुल टोटल ऑफ रिसिप्ट, फुल टोटल ऑफ अमाउंट इन द सेम वे इन इश्यू ऑल्सो, लेकिन बैलेंस में ये लास्ट का ही टोटल करना है। एंड जस्ट वेरीफाई विद द रिसिप्ट क्वांटिटी माइनस इश्यू क्वांटिटी इन द सेम वे, receipt amount minus your issue amount, just verify it, you will get the same answer by any method. So here we are concluding with the LIFO method sum. In the next video again we will go with the new question. So till then stay tuned, goodbye.